अगर मैंने कोई बोला है कि कट करने वाला सीन अगर वो आया तो मैं अपने लॉयर को कहकर सीन करवा दूँगी सोसाइटी। Hi guys, welcome back to our podcast series Unplugged with Mercado. I, Navya Madan, along with Vansh Nagpal, will be hosting today's episode Safar Ya Safar. We'll be covering all the aspects of college life, be it professional life, be it academics, be it fun, sab kuch. Bunks, college trips, fest, hangout spots, internships, society value, personal growth, सब कुछ आज cover होने वाला है. And for today, we have our guest Ansh with us. He is a marketing and brand strategist. Could you please introduce yourself to the audience? Sure. Thank you so much for the beautiful intro, Navya. Hi everyone. My name is Ansh Sadhana, and like Navya said, I am a marketing and brand strategist. I am also working at a company named Resourcify as an account manager, wherein I work with multiple companies in the US and UK to build up brand strategies for them, to do marketing execution, and to oversee the complete social media ads, public outreach, SEO, and all the right needs. Thank you for the introduction. Now let's quickly dive into the stories and insights Ansh has in store for us. Alright then, let's get started. Since fest season है, let's begin with that only. North campus के fest में बहुत popular होते हैं fest और उनके personalities भी popular होती हैं. But South का तो आपको पता ही है. Yep. So how has your experience been over the years attending South campus के fest? Well, South campus के fest में कभी भी जाओ, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कहीं ना कहीं. Obviously. Yep. And hookup culture बहुत होता है, देखा जाए तो. But well, it's a good socializing zone as well, I would say. But apart from that, when it comes to कौन से artists आ रहे हैं or maybe like what kind of attractions there are, I would absolutely prefer North Campus. And आपका तत्वा में एक्सपीरियंस कैसा रहा है लाइक सीरियस का इट्स ओन फेस्ट सो यार देखो तत्वा एक ही बार ही हुआ है out of the 3 years I've been in college because initial years were in COVID, तो तब कुछ हुआ नहीं. And then when we came back, तब that was a beautiful event. But उसके बाद कुछ college politics वगैरह की वजह से नहीं हो पाया event. But जो एक साल हुआ था ना, that was amazing. मतलब सारे के सारे जो what do you call those cultural societies, उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोर किया and अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स भी उन्होंने रखे इंटरनली, सच एज हमारी एक फोटोग्राफी सोसाइटी है ज़ेफर, राइट. उन्होंने एक B-roll कॉम्पिटिशन किया था. सो सिंस आई वॉज इनटू वीडियो मेकिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, सो मैंने उसमें पार्ट लिया. एंड लाइक उनका मेन गोल यही था कि आउट ऑफ द कंप्लीट फर्स्ट डे ऑफ द इवेंट गो एवरीवेयर एंड शूट सम B-roll and then create a beautiful montage out of it and then submit it. So I did that and luckily मैं जीत गया उसके अंदर. दैट इज ग्रेट. एंड ओवरऑल वो वीडियो बनाते टाइम पे मुझे हर जगह में सब लोगों से मिला. मैं ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पे नहीं होना चाहिए, सच एज बैक स्टेज. हाँ, तो बाउंसर्स के बीच में से निकल के पहुँच गया मैं. बट काफ़ी मज़ा आया था. दैट्स ग्रेट. ऑल्सो आपको पता होगा कि कॉलेजेस की ट्रिप्स वगैरह जाती रहती हैं एंड सोसाइटीज़ की भी जाती है. सो हैव यू एवर बीन ऑन अ ट्रिप? Absolutely, I have been. So I was in a society, the Entrepreneurial Board, and हमारी एक ट्रिप गई थी which was a 4-day trip, जिसके अंदर we went to Udaipur, then we went to Mount Abu, and then we went to Kumbhalgarh Fort, and then back to Delhi. तो हम पूरा टाइम ही ट्रैवल कर रहे थे एंड बस में हमारा ज़्यादा टाइम गया था. बट ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप बिकॉज मैं कुछ पर्सनल शिट से थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था एंड दैट वाज एन एग्जिट फॉर मी. सो मैं गया एंड मैंने ट्रिप पे सबको बोल दिया था भाई देखो ये 4 दिन में तुम्हें जो अंश दिखने वाला है तुम्हें कॉलेज में. एंड जितना बकचोद मैं था वहाँ पे भाई दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हाँ मतलब कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें भी हो गई थी बट मज़ा बहुत आया था. That's the whole point of attending the college trip. Yeah. Also कॉलेज में भी ट्राई कि क्लासेस भी अटेंड हो जाए, सोसाइटी में भी पार्टिसिपेशन हो जाए, मस्ती भी हो जाए, इंटर्नशिप्स भी कर ले, तो दैट गेट्स वेरी हेक्टिक एट द एंड ऑफ द डे. तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? यार देखो
अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है। एट द एंड ऑफ योर कॉलेज लाइफ इफ़ यू वांट टू हैव अ जॉब देन आई वुड से क्लास में बिकॉज क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक बातें होती हैं एंड टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लिखा है वो 1980s में लिखा था, ठीक है, वो अब नहीं फॉलो होता, ठीक है। रियल वर्ल्ड मार्केटिंग में बात कर लो, रियल वर्ल्ड फाइनेंस में बात कर लो, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज आउट देयर ऑन द इंटरनेट जहाँ से तुम सीख सकते हो, जहाँ से तुम खुद को प्रोफेशनली अपस्किल कर सकते हो एंड आर्म कर सकते हो फॉर व्हाट द इंटरव्यूअर इज़ गोना आस्क यू। बिकॉज इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा तुमसे कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बताओ, इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि एक अगर ऐप लॉन्च होने वाला है, वो ऐप इज़ अबाउट से प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, then what would be the target audience, what kind of campaigns would you be running for them, किस टाइप की कलर स्कीम्स तुम रखोगे। सो वो वाली चीज़ें प्रैक्टिकली आती हैं, वो टेक्स्ट बुक्स के अंदर से नहीं आती। So to learn all these practical things, where should we go? Like, should we get into societies or should we go towards internships? So if you had to choose between them, then where would you go? वेल आई वुड से गो फॉर अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। इनिशियली लाइक इस मामले में वी गॉट वेरी लकी बिकॉज हमारा जब कोविड था एंड यू नो फॉर द फर्स्ट 1.5 years हम लोग घर पे बैठे हुए थे एंड प्लस लॉकडाउन था उस टाइम। सो लॉकडाउन के अंदर आई गॉट द चांस कि मैं सिंस क्लास जाने का कुछ पॉइंट था नहीं वहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन थी, ज्वाइन करके छोड़ दूँ, ठीक है। एंड उस टाइम पे व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज करता था यूडेमी वगैरह से, तो वहाँ से कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग मुझे थोड़ा बहुत आता है। देन उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू रन अ बिजनेस, सो तुम लोगों ने सुना होगा गफ़ार मार्केट में सस्ता सामान, राइट। सो मेरे डैड का बिजनेस था कि गफ़ार मार्केट वालों को हम सप्लाई करते थे सामान एंड काफ़ी सारे चाइनीज़ टाइप के प्रोडक्ट्स होते थे जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, जो सस्ते होते हैं एंड काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ होती हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं वेयर हाउस से उठा के लेके आता था एंड घर पे बैठ के अनबॉक्स कर देता था और उसकी यूटिलिटीज़ बताता था। एंड सिंस मेरे डैड के क्लाइंट्स थे ऑल ओवर द कंट्री और उनके आगे क्लाइंट्स थे, हम उनको शेयर कर देते थे ताकि किसी को भी समझाना ना पड़े कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। सो वहाँ से आई गॉट अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप एंड इसी टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें तुम कैपिटलाइज कर सकते हो और यहाँ से मार्केटिंग सीख सकते हो। सो दैट वाज वन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देन व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप्स, वेल जब तुम इंटर्नशिप के अंदर जाओगे ना, तुम्हारा इंटरव्यूअर तुम्हें 50 अलग अलग कैंडिडेट्स से कंपेयर कर रहा होगा एंड वो यही देखेगा कि क्या बोलते हैं इन सबको कुछ नहीं आता, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल फ्रेशर्स। तो उसका क्या गोल है अंदर से, उसका गोल है अंदर से कि कौन मेरा काम सबसे ज़्यादा आसान कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट गो इनटू दैट इंटरव्यू एंड कॉन्फिडेंस से बात करोगे, ठीक है, कि भाई देखो काम ये होगा, ठीक है, मुझे इतना आइडिया है, बाकी का आप मुझे बता देना एंड बाकी उसके बाद आई विल लर्न बाय माई सेल्फ। आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ क्विक स्टडी, से व्हाटएवर यू वांट एंड बस उसको ये यकीन दिला दो कि हाँ ठीक है, इस पर अगर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो ये बाद में मुझे रिटर्न देगा, बिकॉज नोबडी विल spend X amount of time in you unless you can give them a 3x return. So that's about internships. Now if you talk about class, attendance ज़रूरी होती है एंड आजकल मैं सुन रहा हूँ कि DU में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग suffering with this. और ज़्यादा सैड फॉर यू। ओके, तो यार अटेंडेंस के अंदर व्हाट आई वुड से कि क्लास में जाओ, थोड़ा सा जाओ, ठीक है, इतना कि जितना ज़रूरी है, ठीक है। टीचर्स को यकीन दिला दो कि हाँ ठीक है तुम पढ़ सकते हो, पढ़ो मत, ठीक है, ध्यान से सुनो और क्लास के एंड में एक जोक मार दो, ठीक है, ताकि टीचर खुश रहे तुमसे और वो बस देख ले कि हाँ ठीक है ये तो क्लास में आता है, ताकि इंटरनल्स में तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प करा देता है टीचर। सो दैट कुड हेल्प आउट अ लॉट, बट श्योर लाइक बेटर रहेगा। और सोसाइटीज़ के अंदर, यस, व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटीज़ के अंदर व्हाट यू रियली लर्न इज़ पीपल मैनेजमेंट, ठीक है, यू रियली लर्न पीपल मैनेजमेंट। जब तुम नए नए आते हो, यू गाइज आर फ्रेशर्स, तो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें सिखाते हैं चीज़ें, राइट, दैट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड टू बी ऑनेस्ट एक लेवल पे सीनियर भी अपना काम आसान कर रहा होता है। आगे जाके तुम लोग जब हेड्स बन जाओगे ना, कोई और बच्चे आएंगे, तुम बोलोगे ठीक है 20 बच्चे मुझे मिल गए हैं, इनको अपने काम दे देता हूँ, काम जल्दी जल्दी चलाऊँगा मैं, ठीक है। बट वहाँ पे इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उन लोगों को सिखाओ, ठीक है, उनमें अपनी नॉलेज इम्पार्ट करो। देन व्हेन यू गेट टू द फाइनल लेवल, ठीक है, विच इज़ द काउंसिल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, व्हाटएवर, एवरी सोसाइटी से समथिंग एल्स, राइट, द एडमिन बोर्ड और व्हाटएवर। सो वहाँ पे तुम्हारा काम रहेगा सबसे ज़्यादा पीपल मैनेजमेंट का, ठीक है, कि इंटरनल लड़ाइयाँ और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना उसको मैनेज करने का। एंड प्लस फिर यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि भाई हमारे बाद क्या होगा सोसाइटी से, क्योंकि ओवरऑल इन दीज 3 years में बहुत प्यार बन जाता है,
ठीक है, दैट आई वॉन्ट टू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, ठीक है। ऑल्दो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, फाइनेंशियली कुछ नहीं दिया, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस इट वाज अ रोलर कोस्टर एंड आई लव दैट। तो वो वाला लेवल आता है, तो एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, तुम्हारे जूनियर्स के साथ भी एक केयरिंग सा बॉन्ड बनता है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टेज विद यू फॉर लाइफ। काफ़ी होलसम एक्सपीरियंस हो गया कि यू नो एवरीथिंग यू गॉट अ चांस टू डू इंटर्नशिप, सोसाइटीज, एंड व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस इज कि यू हैव बीन हसलिंग कि भाई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ मैं, चाहे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे लॉकडाउन भी है, देन यू डिड समथिंग, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट यू। सोसाइटीज़ का बाहर वाले जो सोसाइटी में नहीं होते वो बहुत बोलते हैं कि ये मजदूरी करते रहते हो, हाँ, अनपेड लेबर। हाँ टॉक्सिक हो जाता है, ये हो जाता है। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच उन लोगों के, क्या मैसेज है कि जो सोसाइटीज़ नहीं ज्वाइन करते ये सब सोचते हैं? People who don't have what you have are jealous of you. That's it. They do not know what what you guys are getting out of. बट दे हैव दिस प्राइड इन दिस थिंग कि हाँ हमने तो इंटरव्यूज नहीं दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं खुद को जाके प्रूव करने की, लेकिन तुम मजदूरी कर रहे हो, हमें तो करना ही नहीं है। उन्हें बोल दो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ, सीधी सी बात है, अनलेस यू गाइज स्टार्ट लर्निंग एट दिस पॉइंट कि तुम्हें हासिल करना है, या फिर कोई उल्टा तुम्हें आगे सुना भी दे, तुम्हें कभी कभी सोसाइटी से निकाल भी देंगे लोग, बिकॉज दिस इज़ लाइफ, ठीक है। अगर लोग तुम्हें समझेंगे कि हाँ ठीक है तुम उनके लिए वैल्यू हो, तो तुम्हें अपने ग्रुप में रखेंगे, वरना भगा देंगे, ठीक है। दिस इज़ लाइफ, ठीक है। एंड यहीं पे काफ़ी सारी लोगों का व्हाट डू यू से कि लाइक ठीक है उन्हें ग्रुप में मुझे नहीं रखना, मैं जा ही नहीं रहा हूँ लोगों के पास, ठीक है। अब जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनको भी मैं रोक देता हूँ। सो पीपल गेट दैट काइंड ऑफ माइंड सेट। लोगों में ईगो बहुत होती है, ईगो हर किसी में होती है, एंड सोसाइटीज़ आर अबाउट हाउ यू कैन बेस्ट मैनेज देयर ईगो, प्लस कॉर्पोरेट भी यही होता है। सीक्रेट बता रहा हूँ। अच्छा, अब बहुत प्रोफेशनलिज्म हो गया। एक और कॉलेज का बहुत पॉपुलर कल्चर है, दारू सुट्टा कल्चर। तो आपको उसकी हवा लगी थी या फिर आप उससे बच गए? यार देखो, मुझे हवा लगाने की तो बहुत ट्राई की गई थी, ठीक है, बट मेरे अंदर से एक मुझे नहीं करना था, ठीक है। एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, ठीक है। मतलब हम पार्टीज़ में होते थे, सुबह के 4 बजे होते थे, खाओ पे बैठे थे, ये ले एक्सेप्ट कर ले, किसी को नहीं पता चलेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। पूल पार्टीज़ हो रही होती थी, ठीक है, कॉलेज की प्यारी प्यारी लड़कियाँ होती थी पूल पार्टीज़ में हमारे साथ, एंड लाइक ले कुछ नहीं होता, ले मेरे हाथ पी ले एंड ऑल दैट, बट नहीं, मैंने तो नहीं किया कभी। तो कुछ ऐसा रीज़न, कुछ ऐसी स्टोरी थी जो किसी के साथ देख ली, बहुत फनी हो गया या कुछ गलत हो गया जिस वजह से आपको था कि नहीं मैं नहीं करूँगा? नहीं, ये एक्चुअली वेल इट वाज अ वैल्यू आई गॉट फ्रॉम माय डैड, ठीक है, कि मैंने ऐसा करना नहीं है, और वो अंदर से चॉइस है। मतलब मुझे ऐसा नहीं घर पे कभी भी किसी ने रोका हो या कुछ भी, ठीक है, बट एवरीबडी हैज़ दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट कि हाँ ठीक है तू करेगा ही। व्हेन इट कम्स टू सीइंग माय फ्रेंड्स, वो एक बहुत अलग स्टोरी। मतलब मैं था और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पहले कभी करी नहीं थी, उन्होंने पहली बारी करी स्कूल के अंदर, वो फिर बंदरों की तरह यहाँ वहाँ उछल रहे हैं एंड यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, मैं उन्हें उठा रहा हूँ पूल में से, पीछे आ रहा हूँ, फिर उसके बाद कमोड को उल्टा करके पीछे से मार के वो भी उल्टियाँ करा रहा हूँ। तो ये सब भी देखा है, फिर उठा के भी लेके आ रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ सोफे पे। तो When you are sober, you have kind of a responsibility to handle others as well. यप, इसलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि पार्टी से मैं ड्राइव करके लेके जाता हूँ। सेफ फ्रेंड, नहीं, you can be safe around. ऑफ कोर्स, या सेफ फ्रेंड। But it also takes courage to go against the peer pressure. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। यू थिंक कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ, मैं सही भी कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग तो कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क अनकूल रह गए, पीछे रह गए। लोग बोलते हैं पीछे रह गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू साधु आदमी है एंड थिंग्स कॉलेज जाने का पॉइंट क्या है, ये सब नहीं किया तो? हाँ, लाइक एक माइंडसेट होता है कि कॉलेज में जाएंगे बहुत कुछ हो जाएगा, कि भाई बहुत ही फन हो जाएगा, तो होता है सच में, मेरा नहीं हो रहा। नहीं भाई, तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, करना है कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज का टाइम है। मेरी चॉइस थी कि मुझे नहीं करना था, ठीक है, इट्स चॉइस, लिजिट चॉइस पे है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसकी आदत ही पड़ जाएगी, क्या पता पड़ जाए, अब वो तुम पे है कि तुम्हारी विल पावर कितनी है। एंड काफ़ी जब आप ना स्कूल से कॉलेज में आते तो आपको ना बहुत तरीके के लोग मिलते हैं अलग अलग। तो कुछ लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, आपको बस यूज़ करते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जेन्युइनली अच्छे होते हैं। सो हैव यू एवर डेल्ट विद दोस्त की दे यूज दिस टर्म सांप है, सो हैव यू बीन अराउंड दिस पीपल एंड आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा?
यार फ्रेंड सर्कल वाइज हैंड टू गॉड मुझे सही लोग मिल गए, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू सांप मैं बता दूँ वो सिर्फ कॉलेज में नहीं मिलते, वो कॉलेज के बाद भी बहुत मिलते हैं। हाँ कॉलेज से पहले थोड़ा कम होता है, स्कूल में छोटे नहीं स्कूल के अंदर भी होते हैं, थोड़ा कम कंपैरेटिवली। कुछ से दैट उस टाइम पे बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू पीपल कंट्रोलिंग यू वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होती हैं, ठीक है। अब मैं किसी को सांप तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, वहाँ पे एनाकोंडा। और कॉलेज में होता है कि हर कोई अपने स्कूल का अच्छा होता है अकेडमिक में, मतलब सेम टाइप के लोग आते हैं अक्रॉस वेरियस एरियाज वेरियस स्कूल्स, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कॉलेज में नहीं पढ़ता ही नहीं है कोई। कंपटीशन अरे स्कूल में, पढ़ाई वाला नहीं, मतलब जनरली भी। कंपटीशन स्कूल में होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑफ कोर्स सब लोग किसी ना किसी चीज़ में एक्सेल करते हैं, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू एक्चुअली बी गुड फ्रेंड्स विद देम और उनसे सीखो व्हाट आई मेंट टू से वाज कि स्कूल में हो सकता है कि आप टॉप पे हो क्लास में, बट जब आप कॉलेज आ रहे हो देन यू विल मीट हर स्कूल के टॉप बच्चे, वहाँ पे सारे टॉप पे आ जाए, तो वैसे कंपटीशन ज़्यादा होती है। यू गेट टू सी पीपल एक्चुअली बेटर देन यू, अगर आप बेस्ट भी थे पहले तो। वेल ऐसा बोल सकते हैं, बट दैट अगेन कम्स डाउन कि तुम्हारा गोल क्या है एक्चुअली कॉलेज से, कि तुम्हें बस रिपोर्ट कार्ड में ए ग्रेड लाना है या फिर तुम्हें करियर अच्छा लैंड करना है या फिर खुद को एक्चुअली डेवलप करना है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर रिपोर्ट कार्ड में ए ग्रेड लाना है तो लाइब्रेरी चले जाओ, हर क्लास का टॉपर मिलता है उसे, ठीक है, वहीं पे बैठा हुआ वो अपने कैट के लिख रहा होता है कि भाई आगे जाके मैंने MBA ही करना है, उसका कॉलेज आने का गोल ही होता है कि उसने MBA करना है, ठीक है, एंड वो किसी पॉइंट की बात नहीं होती है आई वुड से, बिकॉज क्योंकि बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि तुम कॉलेज के बाद और 20 लाख खर्च करके और 2 साल पढ़ने से बेटर है कि तुम कॉलेज के अंदर ही वो वाली स्किल्स ले लो कि हाँ बाय द टाइम लाइक 5 years डाउन द लाइन तुम उतने ही पैसे बना रहे होगे, बट तुमने तो 20 लाख रुपये नहीं खर्च किया। आई फील कि स्किल्स गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बंदा पढ़ता रहेगा बट बाद में जाकर जब उससे इंटरव्यू में बात करेंगे कि आपने सीखा क्या एक्सेप्ट पढ़ाई, तब उसके पास कुछ आई गेस होगा नहीं इतना बोलने को। एंड अभी हम सोसाइटीज़ में तो हम काफ़ी कुछ अलग अलग डे टू डे बेसिस पे सीखते रहते हैं, तो दैट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कोर्स इट इज सी। अब MBA के अंदर भी अगर मैं तुम लोगों से पूछूं तो यू गाइस आर इन अ मार्केटिंग सोसाइटी राइट, या हाउ वेल डू यू थिंक कि तुम लोगों को मार्केटिंग आती है? वेल अभी 1 साल ही हुआ है एंड आई बिलीव कि जो मैं कॉलेज आने से पहले था तो काफ़ी फ़र्क आया है मेरे में। लाइक काफ़ी कुछ सीखा है एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही सीख लिया, अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं जो और भी सीखनी है। एंड आई बिलीव कि 3 साल में जाते जाते बाद मुझे काफ़ी कुछ आता होगा। और हम तो MMRD के हैं तो वहाँ पे भी मार्केटिंग का थ्योरीज ही पढ़ते हैं, बस ये होती है वो होती है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। रियल लाइफ बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट मार्केटिंग की थ्योरीज भी पूरी नहीं पढ़ते हैं। सी मैं MMRP में था अभी, मतलब मैं तो बताता हूँ 2 महीने पहले अभी MBA के ना इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पे है गाज़ियाबाद में एक है IMT गाज़ियाबाद राइट, उसमें मेरा कज़न मार्केटिंग में स्पेशलाइज करने के लिए इंटरव्यू दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या ऐसा सिखाते हैं तुम्हें, क्या बताते हैं, तो ही आज में थियोरेटिकल क्वेश्चन कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। यू गाइस नो? नो, मुझे भी नहीं पता था, मुझे आज तक सही से नहीं पता है, ठीक है, बट कॉर्पोरेट में और आगे जहाँ जहाँ पे भी मैंने जॉब करी है किसी ने मुझसे पूछा नहीं, ठीक है। तो आई वुड से कि तुम स्किल लो रियल वर्ल्ड, कि हाँ ठीक है एक सामने कंपनी है जो शूज़ बेचती है, ठीक है, वो एड्स चला रहे हैं, ठीक है, उनका एड्स के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट होता है इतनी कॉस्ट पे, अब वो कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं या रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और ये चीज़ें ना तुम सोसाइटीज़ में से सीख सकते हो, इंटर्नशिप्स के अंदर भी कम है, इंटरनेट पे तुम थोड़ा बहुत थियोरेटिकली वाइज सीख सकते हो, बट जब मेन तुम एक्चुअल जॉब करोगे एज एन एड्स एक्सपर्ट या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, तब जाके तुम्हें एक्चुअली चीज़ें पता चलेंगी। तो इसमें तो केस स्टडी कैन हेल्प, अगर आप केस स्टडीज करते हो दैट कैन हेल्प। केस स्टडीज़ कैन हेल्प, मैंने कभी करी नहीं है, बट मेरे फ्रेंड्स जो कंसल्टिंग वगैरह में जा रहे थे वो केस स्टडीज़ बहुत करते थे, तो उनके साथ में बैठ जाता था कई बारी, पहले कुछ नहीं पढ़ता था बट बैठता था, सीखता था चीज़ें उन लोगों से, बिकॉज एवरीबडी इज़ गुड एट समथिंग, लाइक यू सेड दैट एवरीबडी इज़ गुड एट समथिंग, एंड बेस्ट ये रहेगा तुम सामने वाले की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करो एंड उसके साथ बैठ के सीखो। मेरे साथ इतने सारे और लोग थे एंड आई एम 100% श्योर कि वो मुझसे अभी भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई स्टिल रिस्पेक्ट देम, के भी कुछ थे, ठीक है, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट देम बिकॉज वो लोग सही में बहुत बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में,
दोज गाइज आर वेरी 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 गुड एट मैनेजिंग पीपल, ठीक है। तो उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, फॉलो देम ऑन लिंक्डइन, क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कीप डूइंग दैट। तो बेसिकली जेलसी के लिए रूम नहीं होना चाहिए, लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अभी से तुम जेलस होने लग गए, फिर तो तुम कुछ कुछ सीख साल नहीं बाद पाओगे। दूसरों की सैलरीज देख के जेलस हो जाओगे, हाँ। उसके कुछ साल बाद दूसरों की गाड़ियाँ देख के जेलस हो जाओगे, फिर घर देख के जेलस हो जाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो योर सेल्फ, तुम सामने से कॉम्पिटिशन करते रहो। नेवर एंडिंग। एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी एंड वो खुद एक्सप्लोर करता है बंदा। जस्ट बिकॉज सामने वाला ये कि बहुत अच्छा कमा रहा है तो इट डजंट मीन वो तुम्हारे लिए भी होगा, अनटिल तुम काफ़ी अच्छा करते हो, यू नो, मेहनत करते हो अच्छी खासी। मेहनत इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ, बट अगेन तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तुम कहीं पर भी जाओगे ना, बी दैट पर्सन जिस पर लोग रिलाई करें, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस ही आता है, द वे यू कैरी योर सेल्फ अराउंड, द वे यू से थिंग्स, द वे यू मेक योर मैनेजर्स रिलाई ऑन यू, वहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। अगला सवाल। और ऐसा होता है ना कि अभी जैसे मेरी कॉलेज लाइफ चल रही है तो मेरे क्लासेस में अटेंडेंस तो होती नहीं है, हमेशा ग्राउंड में ही होती है। तो ऐसा कुछ आपका हैंग आउट स्पॉट था कि यू नो कॉलेज के बाहर ऐसे ही निकल गए बस टफरी मारने कहीं भी? यार कॉलेज के बाहर सी जब सामने ना एक कैफ़े होता था, मुझे सीधे से उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो बंद हो गया है, बट वहाँ का ओरियो शेक बहुत बढ़िया होता था। सो आई यूज्ड टू गो देयर अ लॉट। एंड उसके अलावा फिर कुछ दोस्तों के साथ बैठो गाड़ी में, ड्राइव अराउंड, कहीं ना कहीं जाके खा पी लो, मज़े करो। सिलेक्ट सिटी चले जाओ। वो Select तो City में? सेकंड होम है मेरा वो तो। एग्जैक्टली, सिलेक्ट सिटी में मुझे ध्यान आया, आई बिलीव हफ्ते में 2 या 3 बारी फूड कोर्ट में तंबोला होती है, यू गाइस नो। नहीं। वहाँ पे तंबोला होती है एंड तुम जैसे जैसे उसमें जीतते रहते हो ना, तुम्हें कूपन्स मिलते हैं खाने के। सो व्हाट वी डिड वाज, हम 4 लोगों का ग्रुप गया था, 4 या 5 लोगों का गया था। हम लोगों के मैक्स 200 रुपये पर पर्सन लगे होंगे, लेकिन हम कम से कम 4-5 घंटे बैठे थे एंड हमने 20 से 30 डिशेस ऑर्डर कर दी थी, वो कूपन यूज़ करते हुए। ओके। अमेजिंग। अगर ये अभी हो रहा है आई डेफिनेटली ट्राई दिस। काफ़ी अच्छा ऑफर बताया आपने। एंड क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द बंद वाला कैफ़े, जो कैफ़े बंद हो चुका है, उसके अलावा कोई ऐसे है जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ। जगह है और टंकुश करके रोड साइड कैफ़े टाइप का बोल लो, रेस्टोरेंट टाइप का, IIFT करके एक वो है ना कॉलेज, हाँ। उसके पास है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ का खाना अमेजिंग। एंड कॉलेज लाइफ आपको पता होगी काफ़ी रोलर कोस्टर होती है, तो ऐसा कोई अपना क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है कोई कॉलेज लाइफ का, या फिर कोई भी ऐसा? स्पेशल इंसिडेंट आज भी बता दें। सी हंसाने वाली बात अलग है, इट्स नॉट समथिंग आई एम फुल्ली प्राउड ऑफ, बट इट्स एन अमेजिंग स्टोरी टू टेल। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज दैट हम लोग उदयपुर में जब थे, व्हेन वी वेंट ऑन अ ट्रिप, ठीक है, एट द एंटरप्रेन्योरियल बोर्ड, ठीक है, तो वहाँ पे हम वहाँ गए थे, मॉनसून पैलेस गए थे उदयपुर में। एंड तो जब वहाँ से हम निकल रहे थे ना, रात हो गई थी एंड बहुत भूत बंगला टाइप का लग रहा था, तो हमने वहाँ से शुरू किया था कि मौजूली का इसके अंदर भूत नहीं है, उसके अंदर भूत नहीं आ गई है एंड ऑल दैट, ठीक है। हमने वो पूरा एक दिन चलाया। फिर व्हेन वी वर इन माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू में व्हाट हैपेंड वाज कि एक वो फेज़ आता है ना कि एक जो छोटा सा ग्रुप बन जाता है, तुम उनके साथ बैठे हुए हो एंड यू डोंट वांट एनीबॉडी एल्स, तुम बस दिल की बातें शेयर कर रहे हो, सुबह के 2 बज रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, रैंट कर रहे हो या प्लास्टिक फिर वाली चेयर पे, क्या, प्लास्टिक वाली चेयर। हमारे वहाँ पे था, हम होटल रूम के अंदर थे, ठीक है, हमने रूम को अंदर से लॉक कर दिया था, हम 5 जने बैठे हुए थे, ठीक है। एंड सिंस हम आई बिलीव रात के 11 बजे से लेकर 2 बज चुके थे एंड किसी ने हमें देखा नहीं था, सारे वो रूम पे आके खड़का रहे थे, कभी करके आ रहे हो तुम सारे एंड थिंग्स लाइक दैट। हम बस बैठे हुए थे। आई होप रूम के बाहर सॉक नहीं टंगाई होगी आपने। नहीं, हमने ऐसा कुछ। सो बातें करते 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 कुछ सुबह के 3-3:30 बज गए। हमारे ठीक साथ वाले रूम में पार्टी हो रही थी, ठीक है। पता नहीं क्यों हम लोगों ने सोचा कि इनको भूत से डराते हैं फिर से, ठीक है। सो अब हम लोगों ने बड़े सारे छोटे छोटे प्लान्स बनाए एंड वो कैंसिल कर दिए, ठीक है। हमारा इनिशियल प्लान वाज कि हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ोन को एक पिलो के अंदर डालते हैं, उसके अंदर आमी जेर तुम्हारा बजाते हैं एंड वो इनकी बालकनी में फेंक देते हैं,
ठीक है, ताकि फ़ोन ना टूटे पिलो की वजह से और आवाज़ आए। बट फिर हमें लगा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, चेंज करते हैं। देन हम लोगों ने पूरी ट्रिप पे ना सिर्फ दाल मखनी बटर नान खाया था। सो व्हाट वी डिड वाज हमने एक फ्रेंड की लिपस्टिक ली, ठीक है, होटल के मेन्यू पे वो पनीर बटर मसाला और दाल मखनी को कहते हैं सर्कल किया एंड लिख दिया ये ज़रूर खाना। और फिर हमने सोचा ये फेंकते हैं हाँ। बालकनी में। फिर हमें उसमें भी मज़ा नहीं आया कि हमने कहा नहीं इसमें भी अच्छा नहीं लगेगा। देन व्हाट वी डिड कि हर होटल रूम के अंदर टेलीफोन होता है, हाँ, हमने हाँ, उसका रिसीवर निकाला, बालकनी में गए हम लोगों ने घुमाया और सीधा उनकी बालकनी की खिड़की पे मारा और फिर वापस ले गया। गाने अंदर बज रहे हैं, अंदर पार्टी चल रही है पूरा, एवरीबडी इज़ ड्रंक, ठीक है। देन गाने बज रहे हैं अभी भी, तो फिर 5 मिनट बाद हमने फिर से मारा, फिर से हमने वापस ले लिया क्योंकि हम लोगों ने वायर तो खींची रखी थी उसकी। तब गाने रुक गए उस टाइम पे, हाँ, बट कोई बाहर नहीं आया। हम लोगों ने फिर से मारा और फिर से खींच लिया। एक बंदा बाहर आता है, आजू बाजू देखते हैं, उसे कुछ नहीं दिखता, हम छुपे होते हैं, वो चला जाता है, अंदर फिर से गाने बजते हैं, हम लोग फिर से मारते हैं। अब क्या, अब गाने नहीं बज रहे हैं, अब लोग बस बैठे हुए हैं और दारू पी रहे हैं, ओके, ठीक है। देन व्हाट वी डिड, हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, उसकी छोटी सी हाइट थी, ठीक है, शी हैज़ वेरी कर्ली हेयर। हम लोगों ने उसको उसकी बालकनी में टपवाया, ठीक है, एंड वी वर ऑन द सेकंड फ्लोर, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग सा था, बट हम लोगों ने टपवाया। साथ ही साथ हमने फेंका एक वाइट कंबल एंड लाइटर। व्हाट शी डिड वाज, उसने अपने बाल आगे कर लिए बिल्कुल, ओके, उसने कंबल ओढ़ लिया एंड उसने लाइटर जलाया, ठीक है, एंड वो ढक 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 वैसे उनकी बालकनी के गेट से मारने लग गई, विंडो से, ठीक है। वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई, भूत है भूत है भूत है भूत है भूत है, ठीक है। अब एक लड़का था वहाँ रूम के अंदर जो बिल्कुल किसी से नहीं डरता था, ठीक है, वो कहता मैं देखता हूँ, ठीक है, वो खड़काई जा रही है, रुक जाती है, वो फिर वो बंदा आता है खिड़की के पास, ठीक है। जैसे ही वो खिड़की के पास आया, उसने बाहर देखा ना, इस लड़की ने फिर से खटका दिया। उससे क्या हुआ, वो पीछे हुआ एंड उसका ना एक नज़र का वो था, माला सी थी, वो टूट गई एंड फिर वो डर गया और एक बारी वो डरा, फिर पूरा का पूरा ग्रुप डर गया, जितने लोग थे रूम के अंदर, एंड सारे भागे। फिर वी थॉट, उसी टाइम पे मुझे बकचोदी मेरे दिमाग से गई एंड एक रिस्पॉन्सिबल अंश वापस आया एंड फिर मुझे डर लगा कि ये सब लोग नशे में है, कोई भी मार सकता है उसको। तो हम लोगों ने कहा अब प्रैंक बर्स्ट कर देते हैं, हम सीधा बाहर आ गए, ठीक है, एंड हम लोगों ने प्रैंक बर्स्ट कर दिया कि हम लोग थे, ठीक है। देन दे सेड कि नहीं वहाँ पे सच्ची में भूत है, जिसे नहीं है मैं साथ में मैं गया बालकनी में, वो लड़की थी नहीं, अब मैं डर गया अब वहाँ पे मैं डर गया, मैंने सीधा नीचे देखा बालकनी से कि वो नीचे तो नहीं गिर गई, ठीक है। बट शी वॉज सो फियरलेस, वो वापस गई, ठीक है, टाप के खुद से, उसने रूम की लाइट बंद करी और सो गई ठीक है। एंड वी वेंट बैक एंड शी सेड नहीं मैं तो सो रही थी। और मैं कहा एक सेकंड रुको, मैं नशे में तो नहीं हूँ This is making me believe कि सच में भूत था। बट वेल तो फिर उसके बाद मुझे हिट हुआ कि भाई मैंने इन लोगों को ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया तो फिर वही है, इसलिए इट्स नॉट समथिंग आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ, बट इट्स अ गुड स्टोरी टू And it was great having you here with us today. And मुझे पर्सनली बहुत कुछ पता चला, you know, insiders पता चले कॉलेज लाइफ के बारे में. And आपने हैंग आउट स्पॉट का जो नाम बताया, I'll definitely go there with my friends. So overall it was great having you here. And now we'll end this podcast. To all the listeners for being till the end, thank you and keep listening to Unplugged with Mercadio. Also we'll be back with another series जो और भी fun होगी. And stay tuned and keep listening. Signing off, your host Vansha Navya. Like, share and subscribe.